Hey friends, welcome back to the channel. If you are new here, my name is Zerak and I'm a final year MBBS student from Lahore, Pakistan. In this video, I'll explain to you what exactly happens after you are done with your MBBS degree and earn the title of to be called as a doctor. If you are interested in content on life in medicine and wants to follow along, consider subscribing. Anyways, let's get started. So it was your dream to become a doctor and want to serve the suffering humanity. For that, you need to do a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery MBBS degree to get the required knowledge and required license to practice as a doctor. So you started struggling for it and you did it. As soon as you complete your MBBS, the first thing you do is house job. House job is also called as internship in other parts of the world. It is basically a 1-year job experience from your parent institute from where you have graduated. Like for me, it is Lahore General Hospital. 1 year of house job is further divided into 4 rotations of 3 months each. 3 months rotation in medicine, 3 months rotation in surgery, 3 months rotation in medicine allied, 3 months rotation in surgery allied. 3 months rotation in medicine and 3 months in surgery is compulsory for everyone do it. But 3 months in medicine allied and 3 months in surgery allied is different for different individuals according to their preference. Like if I want to get experience in dermatology, I will choose dermatology as my medicine allied rotation. If I want to get practice or experience in anesthesia, I will choose anesthesia as medicine allied. Same way, if I want to practice in pediatrics, I will choose that as my medicine allied. And gastroenterology and all other medical specialties, I will mention those on the screen. If I want to specialize in surgery or get experience in a specific surgical field, I will choose like gynecology as my surgery allied, plastic surgery as surgical allied, neurosurgery as surgical allied. All of these are surgical allied. I will mention all other surgical allied on the screen. These are all surgical allied rotations, and you can choose any of these according to your preference you have in mind. After rotating in these 4 specialities and completing your 1 year of house job experience, you get the license to practice independently as a doctor in Pakistan. You will get your PMDC, Pakistan Medical and Dental Commission registration number. This number is the proof that you are a registered medical practitioner and you can practice independently as a doctor in Pakistan. At this point, you make a choice. Either you want to go in a medical specialty and medical field, or you want to go in a surgical specialty or surgical field. Like you want to go in dermatology, it is a medical specialty and medical field. Or you want to go in plastic surgery, it is a surgical specialty and surgical field. Or if you don't want to go on clinical side, you can go to teaching side, like the teachers in different medical colleges who teaches courses of MBBS like anatomy, physiology, biochemistry. This is the teaching side. You can go on that field. Or if you don't want to go on a clinical side or teaching side, you want to go on administrative side, like MS of the hospital, who manages the hospital. It is an administrative side. You can go on that. So you make a choice which pathway you want to go, clinical side, teaching side or administrative side. You make your mind at this point. Like for me, let's suppose I want to specialize in a medical specialty on a clinical side, get experience on it, interact with patients, treat them, educate them. So what is my basic motive here is to enter in a residency or specialization program at this point. A popular residency program in Pakistan is FCPS, which is Fellowship of College of Physicians and Surgeons. So मेरा main motive at this point ये है कि मैं एक FCPS program में enter हो जाऊँ. दिस इज़ अ 4-year ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आप 4-year ट्रेनिंग करते हैं, जॉब करते हैं. उसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है विच इज़ वेरी कम्पिटिटिव एग्जाम कॉल्ड एज FCPS Part 2. जैसे ही आप वो क्लियर करते हैं तो आप FCPS पास कहलाते हैं, फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, और आप अपनी MBBS डिग्री के साथ FCPS भी लिख सकते हैं. बट टू एंटर इन अ रेजिडेंसी प्रोग्राम इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स. देयर इज़ अ ग्रे एरिया हियर एंड आई विल एक्सप्लेन दिस ग्रे एरिया इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. But let's establish some facts beforehand to streamline the process and the ease of our understanding. Basically, आपने MBBS कंप्लीट किया, आपने अपनी हाउस जॉब की, उसके बाद आपने एक रेजिडेंसी प्रोग्राम FCPS प्रोग्राम में एंटर होना है. लेट्स सपोज आप FCPS प्रोग्राम में एंटर हो जाते हैं तो आप ना योर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, इट इज़ अ 4-year of training program. In your first year of training, you are called as postgraduate resident, year 1 PGR1. In your second year of training, you are called as PGR2, third year of training PGR3 and fourth year of training PGR4. सो 4 year आप ये प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप FCPS पास कहलाते हैं. एज सुन एज यू पास योर FCPS, यू विल बी कॉल्ड एज सीनियर रजिस्ट्रार इन अ हॉस्पिटल. आपको सीनियर रजिस्ट्रार की जॉब मिल जाती है इन अ हॉस्पिटल. यू वर्क फॉर 3 years एज सीनियर रजिस्ट्रार इन अ हॉस्पिटल. आफ्टर दैट यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट हॉस्पिटल. असिस्टेंट प्रोफेसर को कंसल्टेंट भी कहते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यू वर्क फॉर 5 years एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम एसोसिएट प्रोफेसर.
Associate professor is a higher post in a particular hospital, in a particular specialty, in a particular department. You work for like 3 to 4 years as associate professor, then you finally become a professor. Professor is basically a top post in any of the medical specialty in a medical hierarchy system. Once you become professor तो फिर आपकी further बस training होती है, मज़ीद आपका year of experience count होता है. Once you become professor, because there is no post above a professor in a particular specialty. Now let's get back to our friend the grey area, the time frame after completion of your house job to enter in a residency program, the time period between it. What used to happen 10 to 15 years ago, like if you want to specialize in internal medicine, which is a specialty dealing with multi-system comorbidities. So let's suppose you want to specialize in internal medicine from Lahore General Hospital. Lahore General Hospital has 3 units: medicine unit 1, medicine unit 2, medicine unit 3. Like you want to specialize from medicine unit 1. So what you need to do, you go to medicine unit 1, you write a application to the professor of medicine unit 1 कि आपने यहाँ से स्पेशलाइजेशन करनी है इन इंटरनल मेडिसिन, आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आप अपने 5 years ऑफ MBBS के स्कोर्स उस एप्लीकेशन में अटैच करते हैं, आप बताते हैं कि आप कितना कॉम्पिटेंट हैं, आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं. आप सारी एप्लीकेशन अपनी CV बना के ना सबमिट करवा देते और आपकी वो अप्रूव हो जाती है, तो आप अपनी रेजिडेंसी और स्पेशलाइजेशन वहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे. दिस प्रोसेस यूज्ड टू हैपन 10 to 15 years ago. Then what happened? As you all know that the population of the world is increasing and that of the population of Pakistan is also increasing. There is a population explosion. So what happened कि जो हर साल डॉक्टर्स थे वो ज़्यादा ग्रेजुएट होना स्टार्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू द सीट्स अवेलेबल फॉर स्पेशलाइजेशन. बहुत ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बन गए जो कि डॉक्टर्स जनरेट करना स्टार्ट हो गए. फिर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स चाइना और एशिया से MBBS करने लग गए, वहाँ से MBBS करके आके वो पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन करना चाहते थे, जिनको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं. सो एक डिसप्रोपोर्शन क्रिएट होगी कि जो डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और जो सीट्स अवेलेबल है वो बहुत कम है. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इन लाहौर, तो लाहौर में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 6 हॉस्पिटल्स हैं, लाइक मियो हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, शेहजाद हॉस्पिटल एंड गंगाराम हॉस्पिटल. सो ये 6 हॉस्पिटल्स हैं, यही स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. जबकि जो ग्रेजुएट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स, लाइक अराउंड 3500 गवर्नमेंट मेडिकल ग्रेजुएट्स हर साल ग्रेजुएट होता है इन पंजाब. सेम में जो प्राइवेट मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो अराउंड 4000 हैं. फिर अराउंड 1000 to 1500 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं जो चाइना और एशिया से आते हैं. सो ये कुल मिला के अराउंड 9000 to 10000 ग्रेजुएट्स बन जाते हैं हर साल जो कि स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं. जो कि अब सीट्स की बात करें तो FCPS की जो सीट्स हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सब स्पेशलिटीज़ में मिला के वो अराउंड 700 हैं एंड 10 to 15 years ago वो अराउंड 500 थी. तो यू कैन सी कि 10 to 15 years में सिर्फ 100 या 150 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं. सो देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ डिसप्रोपोर्शन. आप देख रहे हैं कि एक तरफ 9000 ग्रेजुएट्स हैं और एक तरफ 1500 सीट्स हैं. सो देयर मस्ट बी अ सिस्टम जिसमें हम लोग जज कर सकें एक स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन करने के लिए. So what the government did is they came up with a policy which is called as Central Induction Policy. This policy came like 5 to 6 years ago. मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है लेकिन इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए, लाइक 2010 में आई है शायद. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी देयर विल बी अ मेरिट सिस्टम, अ क्राइटेरिया जिस पे पूरा उतरते हुए स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन में इनरोल होने का मौका मिलेगा, बाकी स्टूडेंट को नहीं मिलेगा. It is like a scrutiny system, a hurdle to enter in a residency program. According to Central Induction Policy, if you want to enter in a residency program, you have to meet a particular criteria, which I'm going to explain at the moment. इसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं एंड इन 100 मार्क्स की डिफरेंट डिवीजन हुई है जो आपको एक्सप्लेन करूँगा. आप सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, उसके बाद आपकी 100 में से एक स्कोरिंग होती है एंड जिसकी जितनी ज़्यादा स्कोरिंग होती है वो उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग एक स्पेशलिटी चूज़ करता है, उसमें एंटर हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू CIB दे आर टोटल 100 मार्क्स. उन 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके MBBS डिग्री के हैं. लाइक MBBS इज़ अ 5-year डिग्री. आपके 5 ईयर में हर प्रोफेशनल एग्ज़ाम में टॉप 1, 2, 3, 4, 5 में जितने भी मार्क्स हैं आप उन सब मार्क्स को ऐड करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. सो जो भी आपका एक स्कोर आएगा वो आप उसको ऐड कर लेंगे आउट ऑफ 20. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने MBBS के 5 ईयर में 70 to 75% मार्क्स या 80% मार्क्स लिए होते हैं, उनका जो स्कोर होता है 20 में से वो अराउंड 13 to 15 होता है, वो इस कैटेगरी में लाइक कर देते हैं. सो आफ्टर ये 20 मार्क्स आपके 5 मार्क्स होते हैं अटैम्प्ट के कि आपने जो 5 प्रोफेशनल एग्जाम है उनको सबको फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं. लाइक लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. तीनों सब्जेक्ट आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया, आप सेकेंड ईयर में आ गए तो आपको 1 नंबर फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा. लेकिन अगर आपने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट फेल कर लिया या 2 सब्जेक्ट्स फेल कर लिए
इट्स मीन कि आपने उस एग्ज़ाम को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पास करने के लिए दोबारा वो एग्ज़ाम दिया, तो आपकी एक अटैम्प्ट काउंट हो गया, तो आपको ना वो उस ईयर का 1 मार्क नहीं मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सारे प्रोफेशनल एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लेते हैं और 5 मार्क्स उनको मिल जाते हैं। उसके बाद 5 मार्क्स होते हैं आपके रिसर्च के। अब ये रिसर्च जो है ये कि उन्होंने न्यू पॉलिसी में अमेंडमेंट किया, वो ये कि पहले ना रिसर्च पाकिस्तान के जर्नल्स में जो पब्लिश होती थी ना, वो एक्सेप्ट हो जाती थी और इसके 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने एक रिसर्च पब्लिश की हुई है आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने 2 रिसर्च पब्लिश की हुई है तो टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स से ज़्यादा आप मार्क्स नहीं ले सकते अगर आपने 10 रिसर्च भी पब्लिश की हुई हैं। लेकिन बट दे डिड के उन्होंने जो जर्नल रिकमेंड किए वो थे इंटरनेशनल जर्नल, जिसमें आप पब्लिश करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। पाकिस्तान के जर्नल में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पब्लिश करने के। और जो इंटरनेशनल जर्नल हैं जो रिकॉग्नाइज हैं वो हैं JCPSP और JPME, ये 2 जर्नल्स हैं। अगर आप इसमें पब्लिश करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दे आर 40 मार्क्स ऑफ FCPS पार्ट 1। FCPS पार्ट 1 इज़ एन एग्ज़ाम। ये बेसिकली जो 5 ईयर्स ऑफ MBBS में हमने पढ़ा होता है उसी को समराइज़ करके, जैसे FSC आप करते हैं उसके बाद MCAT एक उसका खुलासा टाइप होता है, एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है FSC की बुक्स के अंदर से आपने वो पास करना होता है MCQ बेस्ड। तो उसी तरह FCPS भी एक MCQ बेस्ड पेपर होता है, उसका सिलेबस MBBS के अंदर से ही होता है, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, आपने उसको पास करना होता है। अगर आपने पास कर लिया तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 40। इसमें पास एंड फेल होता है, स्पेसिफिक मार्क्स नहीं मेंशन होते। अगर आपने इसको पास कर लिया 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, नॉट 40। सो 20 मार्क्स ऑफ योर MBBS डिग्री, 5 मार्क्स ऑफ योर रिसर्च, 5 मार्क्स ऑफ योर अटेम्प्ट एंड 40 मार्क्स ऑफ योर FCPS पार्ट 1 मेक अ टोटल ऑफ 70 मार्क्स। इन 70 मार्क्स में सबके ऑलमोस्ट मार्क्स सेम ही होते हैं। जो मेजर डिफरेंस आता है, जो गेम चेंजर होता है, वो बेसिकली लास्ट 30 मार्क्स होते हैं। इसी की बेस पर सारा मेरिट डिपेंड कर रहा होता है। एंड दैट इंक्लूड्स 10 मार्क्स ऑफ योर हाउस जॉब प्लस योर एप्लीकेशन इन योर पेरेंट इंस्टीट्यूट। लाइक मेरा जो मेडिकल कॉलेज है वो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है और मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल है। अगर मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से हाउस जॉब करूँगा तो मुझे 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही करूँगा तो मुझे 5 मार्क्स उसके भी मिलेंगे। दिस इंक्लूड 10 मार्क्स। उसके बाद लेट्स सपोज आप कोई फॉरेन ग्रेजुएट हैं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अगर आप वहाँ से ही हाउस जॉब करेंगे तो आपको वहाँ के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो बाकी 20 मार्क्स होते हैं दैट इंक्लूड्स योर एक्सपीरियंस प्लस योर डिस्टिंक्शंस। अब डिस्टिंक्शन बेसिकली ये है कि अगर आपके पूरे 5 ईयर्स ऑफ MBBS में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 85 प्लस मार्क्स से अबव आए हैं तो आपकी डिस्टिंक्शन कंसिडर की जाती है उसमें, और आपको उसके ना 2 मार्क्स मिलते हैं। 1 डिस्टिंक्शन 2 मार्क्स, 2 डिस्टिंक्शन 4 मार्क्स। अगर आपकी इवन 10 डिस्टिंक्शन हैं तो भी आपको सिर्फ 4 मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि 4 मार्क्स मैक्सिमम है। बाकी 16 मार्क्स ना आपके एक्सपीरियंस से होते हैं, लेकिन ना एक्सपीरियंस वाला पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आप बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। बट लेट्स कैलकुलेट आवर मेरिट एट दिस पॉइंट। सो अगर आपने 5 ईयर्स ऑफ MBBS में हर साल 70 या 75 प्लस मार्क्स लिए हैं तो आपका जो एग्रीगेट है वो अराउंड 13 to 15 पॉइंट्स के अंडर लाइक कर रहा था आउट ऑफ 20। सो लेट्स सपोज आपके 14 मार्क्स हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन हम 14 मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद सब स्टूडेंट्स ना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 5 प्रोफेशनल्स पास कर लेते हैं, उसके 5 मार्क्स सबको मिल जाते हैं। उसके बाद रिसर्च बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, और अब जो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपकी इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश हो तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके रिसर्च के मार्क्स होते हैं। सो हम रिसर्च में 0 मार्क इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद FCPS सबका पास हो जाता है, उसमें सबको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, 30 पॉइंट उसके ऐड कर लिए। उसके बाद लेट्स सपोज आपकी 2 डिस्टिंक्शन है 2 सब्जेक्ट्स में इन 5 ईयर्स, तो आपको उसके 4 मार्क्स मिल गए। उसके बाद 5 मार्क्स आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब किया, और उसके बाद 5 मार्क्स आपने अप्लाई भी अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में किया। सो आपके टोटल ना पॉइंट 63 बनते हैं अगर हम इस तरह कंसिडर करें। अभी आपका एक्सपीरियंस टीम कैलकुलेट किया। सो इन 63 पॉइंट्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं किसी हॉस्पिटल में तो आप बेसिकली पहले चेक करते हैं कि वहाँ का मेरिट कितना है। लेट्स सपोज के इंटरनल मेडिसिन का लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अगर बात की जाए तो मेरिट ना लास्ट ईयर 71 to 77 इसके दरमियान लाई कर रहा था। सो इट्स मीन कि इन 63 के साथ आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको तो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में एंटर होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेरिट ही 71 to 77 के अंडर लाई कर रहा है। अगर आपका मेरिट अराउंड 75 है तो फिर आप ऑन अ सेफ साइड हैं। सो व्हाट यू कैन डू इसके आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स चाहिए। वट एवर यू डू, अगर आपकी डिसीजन में आता है भी आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं होंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। नाउ अब मैं आपको एक्सपीरियंस वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हाट इज़ दैट एक्सपीरियंस थिंग। बेसिकली एक्सपीरियंस काउंट होता है कि 3 बेसिक यूनिट्स हैं जहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है। फर्स्ट इज़ बेसिक हेल्थ यूनिट जिसको BHU कहते हैं। सेकंड वन इज़ तहसील हेडक्वार्टर यूनिट, उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। थर्ड वन इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट, उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अब BHU में अगर आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मैक्सिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आपने 2 ईयर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने THQ तहसील हेडक्वार्टर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया तो आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं।
2 years का एक्सपीरियंस 12 पॉइंट्स। सेम वे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्राइमरी हेल्थ केयर ग्रांट्स यू 4 मार्क्स और 2 years का मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। सो BHU तहसील हेडक्वार्टर और प्राइमरी हेल्थ केयर ये 3 बेसिकली यूनिट्स है जिसका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहे हैं जो आप लाहौर में है तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट नहीं होता। इसी तरह सिर्फ इन 3 पेरिफेरीज का ही काउंट होता है और ये बेसिकली शहर से दूर जगह होती हैं, इसको रूरल प्लेसमेंट भी कहते हैं। और वहाँ पर 2 रूम का सेटअप होता है। एक रूम में आपकी OPD टाइप क्लिनिक होता है जिसमें आपने पेशेंट्स को देखना होता है, जो आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, आप उनको मैनेज कर लेते हैं, बाकी को आप हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। साथ में आपको एक रूम मिला होता है, वहाँ पर ही आपने रहना होता है, 24/7 आपकी वहाँ पर ड्यूटी होती है। इस तरह आप अपना पूरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस पूरा करते हैं। अब ये एक्सपीरियंस ऑफ BHU तहसील हेडक्वार्टर प्राइमरी हेल्थ केयर सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि एक आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा, आप रूरल एरिया में जाके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और मेन वजह ये है कि BHUs आर नॉट ईजीली अवेलेबल। बहुत कम BHUs हैं जो अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया, कोई मेरिट नहीं है कि BHU किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कोई सेट सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको BHU दे देंगे, इतना कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लिंक्स की बेस पर डिपेंड करता है। हम जो कहते हैं कि सिफारिश जिसकी होती है उसको BHU मिल जाता है, काफ़ियों को नहीं मिलता। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल लिंक अ वीडियो ऑन द स्क्रीन जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई थी कि उकाड़ा के एरिया में कोई 2500 एप्लीकेंट्स से सिर्फ 95 सीट्स के लिए। तो आप डिसप्रपोर्शन दोबारा देख रहे हैं कि अब कोई मेरिट फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है। 2500 एप्लीकेंट्स हैं जो उकाड़ा की एक BHU के लिए, बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए, रूरल प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ 95 सीट्स हैं देने के लिए। सो मतलब किस क्राइटेरिया की बेस पे वो 95 सीट्स मिलेंगी। सो आप देख रहे हैं काफ़ी डिसप्रपोर्शन है। बेसिकली दिस सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जिनको BHU नहीं मिलता, उनकी इंडक्शन नहीं हो सकती फ्यूचर में और दे आर बेसिकली अनएम्प्लॉयड। उन्होंने मतलब MBBS किया है, हाउसअप किया, उसके बाद उनको अब फर्दर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में वो एंटर ही नहीं हो सकते। वो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन वो बेसिकली नॉन ट्रेनिंग जॉब होती है, उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे, बस आप सिंपल जॉब कर रहे हैं टू सस्टेन योर सेल्फ, टू सस्टेन अ लिविंग। और ये काफ़ी मतलब बैड सिचुएशन है टू बी इन। सो बिफोर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होता ये था कि आपका MBBS हुआ, आपकी हाउसअप हुई, आप स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन हो रही है एंड यू आर इन अ प्रीटी गुड पोजीशन। आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती थी कि आप ग्रो कर रहे हैं इन अ मेडिकल प्रोफेशन। बट जब से सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आई उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कि डायरेक्ट हाउसअप के बाद स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करना चाहते थे, वो बेसिक हेल्थ यूनिट या फिर तहसील हेडक्वार्टर में जाके 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस हासिल करें। एक्सपीरियंस इज़ अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस इज़ बैड, बट स्टार्ट में ये हुआ कि उन्होंने एक्सपीरियंस लिया वहाँ पर जाके जिससे उनकी ट्रेनिंग डिले हुई। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता गया उसके बाद सैचुरेशन स्टार्ट होगी BHUs में भी, अब BHUs अवेलेबल ही नहीं है जिससे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है और ये काफ़ी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रही है डॉक्टर्स की। सो बेसिकली व्हाट दे डिड कि जो उनको सीट्स इंक्रीज़ करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, उन्होंने एक स्क्रूटनी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उस स्क्रूटनी में ये हुआ कि डॉक्टर्स बिजी हो गए बेसिक हेल्थ यूनिट का एक्सपीरियंस लेने में और उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलीफ मिला कि अब उन पर थोड़ा प्रेशर कम है कि स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में इनरोल किया जाए। लेकिन वैसे ही 5, 10, 6 ईयर्स के बाद वो दोबारा सैचुरेशन क्रिएट होगी एंड टुडे इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन as compared to 5 to 10 years ago. Now let's take your age factor into account because it is a very crucial point in this whole discussion. So mostly जो students होते हैं उनका 18 years to 23 years इन 5 years में MBBS complete होता है, उसके बाद 1 year of हाउसअप एंड उसके बाद ग्रे एरिया स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपके रफली 3 years वेस्ट हो जाते हैं। 8 months ऑफ यूर सर्चिंग फॉर BHU, उसके बाद 1.5 year आप BHU में एक्सपीरियंस लेते हैं, कुछ लोग 2 year का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद वो फाइनली स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और फाइनली उनकी रेजिडेंसी स्टार्ट होते हुए ऑलमोस्ट 3 years इसमें वेस्ट हो जाते हैं जो कि 10 to 15 years ago लोग स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते थे। सो 18 to 23 years MBBS, उसके बाद 24 years हाउसअप, 25 to 27 years ये 3 year वेस्ट हो गया आपके ग्रे एरिया में। उसके बाद फाइनली आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ एज एज ऑफ 28 years। 4 year की स्पेशलाइजेशन होती है एंड एट द एज ऑफ 32 आपकी स्पेशलाइजेशन एंड होती है, यू हैव बिकम FCPS पास अ फेलो। इसके बाद आप सीनियर रजिस्ट्रार वर्क करते हैं फ्रॉम 32 to 35 years एंड 35 years के बाद फाइनली यू हैव बिकम अ कंसल्टेंट जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन अ गवर्नमेंट सेटअप। उसके बाद वही आप 5 year एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर आप असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं।
फिर फर्दर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड यू फाइनली बिकम अ प्रोफेसर. नाउ लेट्स कंसिडर द पे फैक्टर इन दिस मेडिकल हायरार्की सिस्टम बिकॉज इट इज़ इक्वली एज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग. सो द फर्स्ट एवर जॉब यू गेट इन अ मेडिकल प्रोफेशन इज़ योर हाउस जॉब. इन हाउस जॉब आपकी पर मंथ 45,000 पे होती है. इसको स्टाइपेंड भी कहते हैं. ये फिक्स होती है. पूरा 1 ईयर आपको पर मंथ 45,000 मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसके बाद जो ग्रे एरिया उसमें बेसिकली आप काफ़ी दफ़ा अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज अ नॉन ट्रेनिंग जॉब. तो वो वेरी करता है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, लेकिन ऑन एन एवरेज 60,000 to 80,000 पर मंथ उनकी भी पे होती है. उसके बाद जो BHU बेसिक हेल्थ यूनिट, अगर आप यू आर लकी इनफ आपको बेसिक हेल्थ यूनिट मिल गया है तो उसमें पर मंथ पे अराउंड 1 लाख to 1,25,000 होती है. ये वेरी करती है, लेकिन बेसिकली यही रेंज होती है. और ये थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ये एक पेरिफ्री में जॉब है और इट इज़ अ टफ जॉब कि आप अपने शहर से अपने घर से दूर हैं और एक आप रूरल प्लेसमेंट में आप बैठे हुए हैं, तो इस वजह से इसकी पे थोड़ी ज़्यादा होती है. बट एज सुन एज यू स्टार्ट योर रेजिडेंसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम एज अ PGR1, सो PGR1 की जो पे होती है वो अराउंड 80,000 होती है एज अ PGR1. फिर जैसे ही आप PGR2 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, इन PGR2 आपकी 85,000 हो जाती है, PGR3 90,000 एंड PGR4 95,000. सो इन जनरल ये जो 4 ईयर ट्रेनिंग होती है फ्रॉम योर एज 28 to एज 32, यू आर बेसिकली अर्निंग 80,000 to 95,000. ये वेरी करता है लेकिन बेसिकली अप्रॉक्सीमेट रेंज यही है. उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के बाद आप स्पेशलिस्ट बन गए हैं. उसके बाद आप सीनियर रजिस्ट्रार की जॉब स्टार्ट करते हैं. So a senior registrar roughly earns around 1,05,000 to 1,15,000 as a senior registrar. It's mean you are at the age of 32 to 35 और आपकी basically 1,05,000 to 1,15,000 पे है. So जैसे ही आपकी senior registrar की जॉब एंड होती है फिर आप कंसल्टेंट या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं. Then your pay raised to from 1,15,000 to 1,35,000 and 1,40,000. उसके बाद एज अ कंसल्टेंट के बाद ऑनवर्ड्स आपकी पे इंक्रीज ही होती है, लेकिन रेंज जो है वो 1,50,000 से अबव चली जाती है. नाउ लेट्स कंसिडर दिस एज फैक्टर एंड दिस पे फैक्टर साइड बाय साइड. लाइक फ्रॉम योर एज 25 years ऑनवर्ड्स टू लाइक 35 years you are earning roughly around 80,000 to 1,05,000, which is in my opinion is not sufficient. You know that very well. So what most doctors do in Pakistan to cope with this financial crisis is they build their own private practice. They sit in their own clinic, they build a strong GP system, and how their life is like, what is the work-life balance by doing 2 jobs at a time. Like let's suppose if you are a PGR2 or PGR3 and you are doing your own private practice as well. So what do, you go to hospital from like 8 AM to 2 PM. Most of the days में ऐसे नहीं होता. काफ़ी डेज़ में आपको कॉल्स भी करनी पड़ती है, काफ़ी डेज़ में आपको ज़्यादा आवर्स हॉस्पिटल में रहना पड़ता है. लेकिन एक एवरेज अगर कंसिडर की जाए तो लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू योर हॉस्पिटल फ्रॉम 8 AM to 2 PM. उसके बाद आपने घर में आके 2 to 3 hours रिलैक्स करना है. उसके बाद यू गो टू योर क्लिनिक फ्रॉम लेट्स सपोज 5 PM to 10 PM इन द नाइट. सो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस के मोस्टली डॉक्टर्स की ये रूटीन होती है कि वो 8 to 2 पहले हॉस्पिटल में होते हैं. उसके बाद 3 hours का ब्रेक लेके 5 to 10 वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं. उसके बाद फाइनली उनके पास सिर्फ सोने का टाइम होता है. So you can see कि it is a very stressful life. You can see there is no work-life balance. काफ़ी कम vacations होती हैं. Another issue that doctors of Pakistan have to face and deal with is के जो policies हैं government की and the policy makers of the medical health system, they keep on changing. First, like they introduced standard induction policy which delayed the training years. उसके बाद they introduced a new exam which is called as national licensing exam. It is a new amendment like it came in this year. But NLE basically is it is an exam which include the syllabus of from all the 5 years of MBBS and you have to pass that to get the license to practice in Pakistan. इससे पहले ये होता था कि आपने MBBS किया है 5 years का, उसके बाद आपने हाउस जब किया तो आपको लाइसेंस मिल जाता था. आपने बेसिकली MBBS उन्हीं इदारों में किया है जो उनसे गवर्नमेंट के सर्टिफाइड हैं, जिनको PMDC ने अप्रूव किया होगा. बट नाउ द गवर्नमेंट सेट के एक और एग्ज़ाम लेंगे. इनको लेट्स सपोज आपके वो 5 years ऑफ MBBS की मार्क्स पे डिग्री पे बिल्कुल बिलीव नहीं है एंड ये अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे. उसमें अगर आप पास होंगे तो ही आप लाइसेंस ले सकते हैं. दिस एग्ज़ाम बेसिकली सेइंग दैट के व्हाट यू डिड इन 5 years ऑफ MBBS इज़ नथिंग. We don't believe that, we don't approve that, and you have to take this exam, pass that exam. After that, we will give you license to practice. So basically, it is another hurdle, another scrutiny in your way to get practice, get enrolled in a residency program.
which is not a good thing in my opinion. So you can see this is the reason why most of the doctors in Pakistan are the busiest. They don't have time for anything. There is no concept of work-life balance here for doctors in Pakistan. This video is not intended to demotivate anyone who is thinking of getting into medicine or who is in medicine already. This video is just to give you an insight how things really are in medicine, so you can make a well-informed and conscious decision about your future. I already made a video about should you get into medical school or not. I'll link that up. You can watch that, and I clearly stated that if you're getting into medicine for money, then you should reconsider your decision, because this is the way it is. You do not come into medicine for money. Anyways, where I stand in this whole training system and medical hierarchy, I'm basically at the end of my MBBS degree and the start of my house job. I'm going to start my house job very soon in Lahore General Hospital, and I'll definitely take you with me. That's it for this video. Hope you get something out of it. If you did, a sub would be amazing. Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye.